یہاں پہ ابو ذر نظامانی ہے کوئی, ان سے بات کرتے ہیں, تھوڑی دیر کو بس کمنٹ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ہلو. ہیلو جی. ہاں جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. میرا آپ سے سوال ہے. جی جی. جی ہاں, میں حدیث پڑھ رہا تھا ایک الموطا امام مالک, آپ کو کتاب پتہ ہوگی؟ ہاں جی ہاں جی, بولیے بولیے. موطا امام مالک, ہاں. تو امام مالک روایت کرتے ہیں اسحاق ابن ابی طلحہ کے, ٹھیک ہے, اور وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے کہ عصر کے وقت تھا, ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں تھا اس وقت وضو کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اب یہ اسٹرانگیسٹ حدیث ہے, اس سے زیادہ اسٹرانگ حدیث کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اب اس پہ آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو بڑی اسٹرانگ حدیث کیٹیگوریکلی ہے, یہ مطلب کہہ رہا ڈائریکٹ. ہوں, ہاں ہاں بالکل بالکل, میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا, مردوں میں سے زندہ ہو جانا جو کرسچن مانتے ہیں, ٹھیک ہے, ہنومان کا اڑنا, ٹھیک ہے, موسیٰ کا سمندر کو 2 ٹکڑے کر دینا, محمد کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا, انگلیوں سے پانی نکل آنا, یہ سب جھوٹ ہے ٹوٹلی. ٹھیک ہے, آپ تو اپنی اس کتابوں حدیث میں کو کتابوں جی میں اگر ایک جھوٹی بات لکھ لیں تو وہ سچی نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, ہم نہیں, تو رسول اللہ آپ کے کیا بارے میں اس میں ان کس نے باتوں جھوٹ کو بولا ہے؟ پھر نہیں مسلمانوں نے جھوٹ بولا ہے, جنہوں نہیں نے حدیثیں بنائی ہیں, جنہوں نے قرآن بنایا. نہیں, عیسائیوں نے جھوٹ ان میں بولا سے جنہوں کس نے نے لکھا, بائبل مطلب بنائی ہے. نہیں, اس حدیث پہ سب بات نے, کریں نا ابھی. نہیں, یہ تو ابھی اس شروع حدیث سے پہ ہی بات جھوٹ کرتے بولا, ہیں. سب سے پہلا جو ہوگا اس نے بولا, ختم ہوگی بات. انس ابن مالک نے, ہاں تو اس نے جو بولا ہوگا. صحابی ہیں, ہاں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں جھوٹ بولیں گے؟ آپ چلو یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سچا نبی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انس ابن مالک سچے مسلمان نہیں تھے, کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, یہ حدیث چاہے انس نے کہی ہو چاہے کسی اور نے کہی ہو, ایک بات ہمیں پتا ہے کہ کسی انسان کی انگلیوں سے پانی نہیں خارج ہو سکتا. یہ وہ جھوٹ ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں جھوٹ کس نے بولا؟ اب دیکھیں نا, سب نے بولا یہ ہے. معجزہ ہے, ظاہر سی بات ہے. نہیں تو معجزے جھوٹ ہی ہوتے ہیں نا, اسی میں تو اسے صرف اور صرف میں اس بات پہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ کس نے جھوٹ بولا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ معجزے ہوتا ہی جھوٹ ہے. تو یہ حدیث دیکھیں نا, اب حدیث کو غلط ثابت کریں نا, کیسے کر سکتے ہیں؟ اصول حدیث پہ کیا, آپ, یہ تو بالکل صحیح حدیث ہے. ہاں تو میں تو نہیں سر, اصول حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اسے سائنسی اور عقلی بنیاد پہ رد کر رہا ہوں. مجھے کیسے ہوتا ہے کہ میں آپ کے اصول حدیث کے اس بحث میں پڑھوں, جب مجھے پتا ہے کہ عقل اور منطق کی بیس کے اوپر ہی اس بات کو جھوٹا 1 منٹ میں سائنس کی بیس پہ کیا جا سکتا ہے. نہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث مطلب غلط ہے, ٹھیک ہے بات. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام ہاں میں صحیح ہے. جتنے بھی معجزے, مسیحیت میں جتنے بھی معجزے, ہندوازم میں جتنے بھی معجزے, دنیا کے کسی بھی مذہب میں جتنے بھی معجزات لکھے ہیں, وہ سب سے پہلے وہ جھوٹ ہے. باقی باتیں پھر بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. حضرت محمد مکے میں پیدا ہوئے تھے کہ نہیں, ہاں اس بات کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اس پہ یقین بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت محمد مدینے میں مرے تھے کہ نہیں, اس بات کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, اس پہ یقین بھی کیا جا سکتا ہے. مگر حضرت محمد نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا یا انگلیوں سے پانی نکلا تھا, اس کو تو 1 منٹ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بندہ اسی ٹائم کہہ سکتا ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی پونگی ہے. نہیں پھر سر, آپ جو اسلام پہ کرٹیسائز کرتے ہیں اکثر, تو وہ آپ قرآن کی بیس پہ تو کر سکتے ہیں, پھر حدیث کی بیس پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے نزدیک تو حدیثیں غلط ہو سکتی ہیں, ہوتی ہیں. نہیں, میرے تو پھر نزدیک تو جو بھی, قرآن بھی غلط ہے نا, ہاں میں قرآن کی بیس پہ بھی کرتا ہوں. ہاں, ان کو اس پہ کریں, اس میں غلطی ہیں. حدیث میں کوئی آپ کے نزدیک کوئی غیر اخلاقی حرکت ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے, تو وہ بھی آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ اس حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کریں, تو آپ اس حدیث کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ اسٹرانگ حدیث تو کوئی ہوگی ہی نہیں. نہیں, وہ آپ کو درد ضرور ہوگا, آپ کو ہوں درد اور تکلیف ضرور ہوگی, دکھ ضرور ہوگا کہ میں حدیث کی بیس پہ, قرآن کی بیس پہ, ہوں یا جہاں آپ نہیں چاہتے وہاں پہ اسلام پہ تنقید کرتا ہوں. مگر میں اسلام پہ کسی بھی اینگل سے تنقید کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میری مرضی ہے. کیونکہ ایک بندہ اگر جھوٹا ہوتا ہے نا, تو اس کو اس کی باتوں میں بھی جھوٹا کیا جاتا ہے, اسے دوسرے کی گواہی سے بھی جھوٹا کیا جا سکتا ہے. اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو تو وہ بھی دکھا دی جاتی ہے, اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہو تو وہ بھی دکھا دی جاتی ہے, اس نے کہیں کو جھوٹا پیپر سائن کیا ہو تو وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سارے طریقوں سے ایک بندے کو جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے, اور میں کیا کرتا ہوں, میں اسلام کے ساتھ یہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اسلام کو قرآن کے اگینسٹ بھی جھوٹا ثابت کرتا ہوں, حدیث کو حدیث کے اگینسٹ بھی جھوٹا ثابت کرتا ہوں, میں انڈیپینڈنٹ تاریخ سے بھی اسلام کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں, میں اس کے علاوہ اور بھی جو ایویڈنس ہوتا ہے اس سے بھی کرتا ہوں. تو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے 10 طریقے ہوتے ہیں, ان میں سے جو بھی بندہ لگا لے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے بات. تو میں تو سارے طریقے لگاتا ہوں نا. حدیث سائنس کے خلاف حدیث ہوگی تو میں وہ بھی پکڑ لوں گا, قرآن کی آیت سائنس کے خلاف ہوگی تو میں وہ بھی پکڑ لوں گا.
ठीक है, मैं जितने तरीके होंगे, किसी लॉजिकली जितने तरीकों से में वो किया हो, क्या नहीं आप क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन अब देखें ना आप मैं आपकी उमंगों के मुताबिक क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मसला ये है, क्रिटिसिज्म किसी की उमंगों के मुताबिक होता ही नहीं ना। क्रिटिसिज्म का तो पहला रूल ये है, क्रिटिसिज्म उसको दुखना होता है जिसके ऊपर होता है। समझ नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे। नहीं मैं वो ठीक है, चलो मैं नहीं समझ रहा। एक बात मेरी सुने, आप जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कहते हैं कि 9 साल की उम्र में तो शादी की, ठीक है, तो अब देखें ना, आप उस हदीस को सही ले रहे हैं, उस हदीस को सही लेके ही आप अटैक कर रहे हैं ना कि ये एक गैर अखलाकी बंदा था, तो उसको आप सही ले रहे हैं, इसको आप गलत ले रहे हैं, ये मेरी बात है। चलें हम एक बात करते हैं, मुझे बताएं कि एक हदीस है जिसके मुताबिक हजरत मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में आयशा से शादी की, और 9 साल की उम्र में आयशा के साथ मुबाशरत की। हदीस तो है ना, ये हदीस है ना ये। हाँ, आप इसको सच नहीं मानते? मैं मानता हूँ। आप इस हदीस को सच नहीं मानते? मानता हूँ। आप इसको सच मानते हैं, चलें, मगर कुछ भाई ऐसे होंगे जो इसे सच नहीं मानते। अब मसला यह है कि एक भाई आएगा, वो कहेगा मैं इसको सच नहीं मानता। चलो ठीक है, वो नहीं मानता सच, मगर पिछले 1400 साल में हजरत मोहम्मद की के बारे में लिखी हुई इस बात से, चाहे झूठी है या सच्ची है, चाहे झूठी है या सच्ची है, ठीक है, लोगों ने 9 साल की बच्चियों के साथ निकाह करने के बाद सेक्स किया, ठीक है। यानी अल्लाह का वो रसूल जो कि एक अच्छे काम के लिए आया था, उसकी एक हरकत ऐसी है कि उससे 1400 साल पहले से उसके बारे में चाहे झूठी बात क्यों ना लिखी हो, 1400 साल से 9 साल की बच्चियों के साथ सेक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये कसूर हमारा तो नहीं है ना, ये आपके ख्याल में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना कोई गलत नहीं है? नहीं, मेरे नजरिए तो आप अपनी 9 साल की बहन का 9 साल की गलत है। नहीं, आप अपनी 9 साल की बहन का फिर रिश्ता ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे? नहीं, हाँ, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें ना, बात अलग थी। यानी आप 9 साल की बहन की शादी कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं। क्यों नहीं कर रहे फिर? 9 साल की बहन की शादी क्यों नहीं करते आप? मैं ये कह रहा हूँ कि नबी आपकी वालिदा की, आई एम सॉरी, आपकी वालिदा मेरे लिए बहुत, एक मिनट सुन लें मेरे भाई, सुन लें। आपकी वालिदा मेरी वालिदा है, ठीक है, मेरी माँ है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। क्या उनकी शादी 9 साल की उम्र में हुई थी? नहीं। क्यों नहीं हुई थी वैसे, मुझे बताएं तो सही, वजह क्या थी? वजह क्या थी? वजह नहीं पता। वजह आपको पता नहीं है? आप कितने साल के हैं? अम्मी आयशा तो थी नाबालिग। यानी आप ये समझते हैं, अच्छा, तो यानी आप ये समझते हैं कि आपकी अम्मी 9 साल की उम्र में बालिग नहीं थी, अम्मी आयशा 9 साल की उम्र में बालिग थी। चले आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूं कि आपकी अम्मी की शादी किस उम्र में हुई थी? वो उससे आपका क्या है, मतलब 18-19 की होगी, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मतलब इतनी। चले कितने की थी, अंदाजा तो होगा ना? हाँ, मतलब 20-25 के दरमियान, एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन। यानी 20 से 30 के दरमियान आपकी वालिदा थी? जी हाँ। तो फिर मुझे ये बताएं कि हाँ। आप लोग फिर पागल हैं, इसका मतलब है कि आप 9 साल की बच्ची की शादी नहीं करते? नहीं, मेरा वो एक एक्सेप्शनल केस था, सुने। अब देखें, आपको मैं बताता हूँ यार, ये एक सेकंड यार, ये इस जो है ना, एक मिनट यार, चुप करना एक मिनट यार। इस डंगर को ना, अमादुल इस्लाम को, भाई ये इसको तमीज नहीं आ रही चैट में। अमादुल इस्लाम, तुम्हारे साथ बहुत तमीज से बात कर ली हुई है, ठीक है, अगर इंसान नहीं बनोगे तो अब यहां से ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हारे लिए कोई स्पेस यहां नहीं बनेगा। आओगे तो अपनी बारी का इंतजार करोगे, और फिर जब हमारा दिल करेगा तुमसे बात करेंगे, क्योंकि तुम इतनी देर से जो लिद कर रहे हो इधर आके, ठीक है, वो हमें नजर आ रही है। तो तमीज से रहो चैट के अंदर, अगर नहीं रहोगे तो ब्लॉक कर देंगे यहां से, क्योंकि जितना तुमने अपनी औकात दिखानी थी वो हम देख चुके हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट ना करना कि अब इधर मुझसे बात करने आओगे तो मैं तमीज से करूंगा। मैं वो आज पेलूंगा ना तुम्हें कि तुम्हें किसी ने जिंदगी में नहीं पेला होगा, ठीक है। इसलिए तमीज से इंसान का बच्चा बन के चैट में रहे, नहीं तो मैं ऐसा आज हाल करूंगा कि तुम्हारा किसी ने किया ही नहीं होगा। हाँ जी, जी अबूजर निजामानी मेरे भाई। उस हदीस पे वापस आते हैं ना, मतलब मेरे नजदीक तो ये हदीस तो
बड़ी मतलब दलील है। एक मिनट ठहर जाओ, ये देखो अब ये मादुल इस्लाम कह रहा है मोहम्मद डंगर, ठीक है, तो इसने अब हजरत मोहम्मद को गालियां देनी शुरू कर दी। मैं नहीं दे रहा, हजरत मोहम्मद को मादुल इस्लाम ने गालियां देनी शुरू कर दी। नहीं हजरत मोहम्मद को कह रहा है, हजरत मोहम्मद डंगर, ठीक है। हाँ चले, हाँ जी आप बात करिए। कौन, इमादुल इस्लाम? हाँ मगर आपका ताल्लुक नहीं है मादुल इस्लाम से, आप मेरे से बात करेंगे, उस बात पे कमेंट नहीं आप करेंगे। हाँ जी हाँ, तो वे कह रहा था मेरे नजदीक तो ये स्ट्रॉन्ग है, सही है, मैं यही कहना चाह रहा था। दलील है मतलब बड़ी एक। नहीं मगर मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग फिर बेवकूफ है ना, आप लोग फिर बेवकूफ हैं कि आप लोगों ने अपनी माओ बेटियों का टाइम जाया किया कि आपने उनकी 9 साल की उम्र में शादी नहीं की, क्योंकि आपने तो टाइम जाया किया। वो 9 साल की उम्र में शादी करती तो जल्दी बच्चे पैदा करती, जल्दी सारा कुछ करती, आपने उनको 30 साल तक इंतजार कराया, 25 साल तक इंतजार कराया, ठीक है। तो फिर मुझे बताएं कि आप ज्यादा अक्लमंद थे या हजरत अबू बकर और हजरत मोहम्मद ज्यादा अक्लमंद थे? देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरी अम्मी का भी 9 साल की उम्र में रिश्ता मानते मैं तो दे देता, मतलब मैं अगर उनका अबू होता तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अलग है, ठीक है। और एक बात आपको कहना चाहता हूं, नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप एक मिनट यार फिर डॉज कर रहे हो, फिर मैं बात कुछ कर रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो ये है कि हजरत अबू बकर सदीक खलीफा अव्वल, पहले एक हिसाब से पहले मुसलमान मर्द, उन्होंने अपनी बेटी की शादी 9 साल की उम्र में अपनी बेटी के साथ सेक्स करवा दिया एक 53 साल के बंदे का। काफी दाना अक्लमंद इंसान रहे ना वो, ठीक है। आप लोगों ने ये काम नहीं किया। आपकी वालिदा की शादी 25 साल की उम्र में हुई, ठीक है। आपके नाना ने नहीं की 9 साल की उम्र में शादी। अब मुझे बताएं कि आपके नाना ज्यादा अक्लमंद थे या हजरत अबू बकर ज्यादा अक्लमंद थे? ये मेरे नाना नहीं, मेरी अम्मी के लिए कोई नबी का रिश्ता आया था क्या? अबू बकर के लिए तो नबी का रिश्ता आया था। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी बहन का रिश्ता या अपनी बेटी का रिश्ता एक 53 साल के शख्स से कर देंगे अगर नबी होगा? नहीं नबी इंसान ही होते हैं ना। क्या नबी का मुझे बताएं कि नबी जब किसी औरत से सेक्स करता, एक मिनट ठहरो, जब एक आदमी किसी 6 साल की बच्ची से सेक्स करता है या 9 साल की बच्ची से सेक्स करता है तो क्या होता है? ठीक है, नबी में बात सुने ना, 20 साल का बंदा वो उसे डैमेज करता है या नहीं करता, मुझे बताएं। डैमेज क्या मतलब? एक 9 साल की बच्ची के साथ जब सेक्स होता है तो वो बच्ची डैमेज होती है या नहीं? डैमेज क्यों होगी मतलब? जारी बात है इंटरनल डैमेज हो जाती है वो बच्चियां इस टाइम मैं की आपसे बात और करने आया था भाईजान, बस मैं मोता की बात कर रहा था भाई मेरे। आपकी बात इधर आ गई है, आप कलाबाजियां। एक मिनट इधर उधर नहीं जाना, अभी ये बात खत्म करेंगे फिर दूसरी बात पे चले जाएंगे। इधर उधर गए, मैं जिस सवाल पे आया था आपने उससे बिल्कुल ही बात दूसरी तरफ ले गए ना। हाँ तो बात से बात निकली है ना, ये बात से फिर वापस चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। इस बात का जवाब दे दे फिर वापस चले जाते हैं। नहीं आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, आपने आप उस तो गुस्से में को गलत साबित किया ही नहीं। तो यार मैं तो कर ही नहीं रहा गलत साबित, मैं तो कह रहा हूं, मैं उसे अकली बुनियादों पे कह रहा हूं कि बेवकूफ लोग हैं जो इसे मानते हैं। मैंने तो शुरू में जवाब दे दिया था, आपको समझ नहीं आई बात की, मैं क्या करूं? क्योंकि ये 3 चले ठीक है ना, मगर अगली बात मुझे ये बताएं, ये झूठ क्यों बोलेंगे? ओ भाई अबू जर मेरी बात सुनिए ना ऐसे नहीं चलता। बात ये थी कि आपने हदीसों पे बहस की है, ठीक है, और आप इतनी बेशर्मी से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बात को मान रहे हो कि 9 साल की बच्ची की शादी की जा सकती है और उसके बाद सेक्स किया जा सकता है, मगर आपने अब ये कहा है कि नबी करेगा 9 साल की बच्ची से तो हम नबी के साथ कर देंगे, बाकियों के साथ नहीं करेंगे। यार कुछ शर्म करो, नबी भी तो इंसान होते हैं, ठीक है। 9 साल की बच्ची के साथ जब सेक्स होता है ना बेसिकली, तो क्या होता है, उसकी डैमेज होती है। अगर एक लड़की के साथ 18-19 साल की 17 साल की उम्र से पहले सेक्स हो जाए तो ये याद रखना कि ये चांस होता है 15 साल की उम्र के से पहले, तो ये बिल्कुल चांस हो सकता है कि वो पूरी जिंदगी के लिए बांझ हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे औरत इस काबिल नहीं होती कि वो बच्चे पैदा कर सके या सेक्स करा सके, ठीक है, खास तौर पे प्यूबर्टी से पहले। और अब कोई भी 9 साल की उम्र में उसको प्यूबर्टी हिट नहीं हुई थी, ठीक है। 15 साल की लड़की अगर बच्चा पैदा करती है ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में कई बार अपने चैनल पे पहले दिखा चुका हूं कि उसके ऊपर लिखा है कि सबसे ज्यादा रिस्की प्रेगनेंसीज 15 से लेकर 20 साल के दरमियान की होती हैं, 20 साल तक रिस्की प्रेगनेंसीज होती हैं। और
एक रिस्की प्रेगनेंसी अगर एक औरत की हो जाए ना, चाहे बच्चा सर्वाइव भी कर जाए, तो उसकी आगे चाइल्ड बर्थ के लिए और बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो आयशा पूरी जिंदगी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकी, पहली बात तो ये, ठीक है। आयशा कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकी पूरी जिंदगी। क्या पता कि 9 साल की उम्र में जो सेक्स हुआ था उसकी वजह से इंटरनल डैमेज ऐसा हो गया कि वो फिर नहीं कर सकी पूरी जिंदगी बच्चा पैदा। दूसरा मसला ये हो सकता है कि हजरत मोहम्मद के साथ कोई मसला था। दोनों तरफ से ही, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है, मगर आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। तीसरी बात यह है कि हजरत मोहम्मद भी मर्द ही थे ना, ठीक है, सही है। जो सामान उनके पास लगा था वो मर्दों के साइज का ही था ना, तो 9 साल की बच्ची के लिए वो खतरनाक ही होता है उस टाइम पे, ठीक है। समझ गए हो? ये बात आपको समझ नहीं आ रही। नबी होगा तो दे देंगे, नबी होगा तो अपनी बेटी को रेप करा दोगे, ठीक है। आप लोग तो सारी कौमें लूत की सुन्नत पे अमल करते हो। लूत ने कहा था कि मेरी बेटियां ले लो, ठीक है। ये बातें आप करते हो। बाकी हदीस की बात वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी भी मौजज़े को, जो चीज विदाउट एनी एविडेंस कहता है ना कोई केस को मान लो, उसे विदाउट एनी एविडेंस रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं हदीस की सेहत पे बहस ही नहीं कर रहा, ठीक है। आप 100 बार कहेंगे हदीस सही है, मैं नहीं मानता इस बात को। क्यों? क्योंकि मौजे मैंने होते कभी देखे नहीं है, और कोई भी साइंसी तौर पे मौजे को साबित नहीं कर सकता। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि हजरत मोहम्मद की उंगलियों से पानी जारी हुआ था। फ्रॉड है, बस इतनी सी बात है। अब ये चला गया, ठीक है। तो ये बातें हैं भाई, ये हमारा मसला नहीं है, ये आप लोगों का मसला है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।